Now among those who went up to worship at the feast were some Greeks. So they came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, Sir, we wish to see Jesus. Philip went and told Andrew. Andrew and Philip went and told Jesus. And Jesus answered them, The hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Now is my soul troubled, and what shall I say, Father? Save me from this hour. But for this purpose I have come to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came from heaven, I have glorified it, and I will glorify it again. The crowd that stood there and heard it said that it had thundered. Others said, An angel has spoken to him. Jesus answered, This voice has come for your sake, not mine. Now is the judgment of this world, and now will the ruler of this world be cast out. And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. He said this to show by what kind of death he was going to die. So the crowd answered, We have heard from the law that the Christ remains forever. How can you say that the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man? So Jesus said to them, The light is among you for a little while longer. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. The one who walks in the darkness does not know where he is going. While you have the light, believe in the light that you may become sons of light. Amen. So, thank you, Father God, for this time, oh Father God. Thank you, Lord, for helping us, Lord, to get together and worship you, oh Father God. Thank you, Lord, that you have given us this opportunity, oh Father God, to share your word, oh Father God. Help us, oh Lord, at this moment, oh Father God. Let your will be done, O Lord, in this moment, O Father God. Help us, O Lord, to understand what you want us to understand, O Father God, from the scriptures, O Father God. Not by our understanding, O Father God, but by yours, O Father God. You help us, O Father God. You teach us, O Father God. Help us, O Lord, to uncover the truth, Lord, that is in the scriptures, O Father God. Help us to understand, O Lord, understand it better, O Father God, and to know you more, O Father God. Help us, O Lord, at this very moment, O Father God. We give ourselves to you, O Father God. We surrender ourselves, O Father God, with all humility, O Father God. Help us, O Father God. We need your grace, O Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name I make this prayer. So, starting from verse 20. Now among those who went up to worship at the feast were some Greeks. So they came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, Sir, we wish to see Jesus. यहाँ पर जो ग्रीक्स का मेंशन किया है वो शायद जेंटाइल्स नहीं हो, वो नॉन मतलब हो सकते हैं कि जेंटाइल्स हो, बट ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि वो जानते थे, वो परमेश्वर को जानते थे, वो पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर है. बट मैं उसके डीप में नहीं गया बिकॉज क्योंकि आगे उसके आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है. वो उन लोग आते हैं और उन लोग यीशु को जानना चाहते हैं. उनमें क्यूरियोसिटी है कि यीशु कौन है, या यीशु के बारे में उनको जानना है, यीशु से मिलना है उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सुना है कि इससे पहले जो हुआ था, जो इससे पहले वाले चैप्टर में जैसे लाजरस को जिलाया था परमेश्वर ने, डेथ मतलब रेस किया था डेथ से, तो वो सारी चीज़ें उनको जब पता चली तो उन लोग यीशु को देखने आए थे वहाँ पर, जो फीस्ट वहाँ पर ऑलरेडी चल रहा था वहाँ पर. तो वो लोग आते फिलिप के पास में. एंड देन नेक्स्ट वाज फिलिप वेंट एंड टोल्ड एंड्रू एंड फिलिप वेंट एंड टोल्ड जीसस एंड जीसस आंसर्ड देम, द आवर हैज़ कम फॉर द सन ऑफ मैन टू बी ग्लोरीफाइड. यहाँ पर परमेश्वर उनको बोल रहा है कि द आवर हैज़ कम. तो वो क्या था, वो आर क्या था अभी तलक में. अगर हम लोग फ्रॉम द स्टार्ट अगर देखेंगे जॉन के बुक ऑफ जॉन के इसमें से चैप्टर 2 में वर्स 4 में जब वो लोग वो शादी में रहते हैं तो मैरी जब यीशु को बोलती है कि
यहाँ पर वाइन ख़त्म हो गया है वो शादी में। तो यीशु एक चीज़ उनको मैरी को बोलता है कि माई आर हैज़ नॉट येट कम। वहाँ पर नहीं था वो समय परमेश्वर का, बट फिर भी परमेश्वर ने साइन किया वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने वाइन को क्रिएट किया। अब ऐसा माना जाता है कि जो चैप्टर 12 है ये एक ब्रिज है, वो पीरियड जो अभी तक था और ये पीरियड जो अभी आने वाला है, इसके बाद जो होने वाला है और ये इसके पहले जो हुआ, ये दो चीज़ है। और ये दो चीज़ को जोड़ने के लिए ये चैप्टर 12 में चीज़ें हुई है। और परमेश्वर यहाँ पर जो क्राइस्ट जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें बताने की और कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियन या बिलीवर के लिए। और वो चीज़ वहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो आर के बारे में बता रहा है, द आर हैज़ कम, मतलब वो बोल रहा है कि मेरा टाइम आ गया अब। तो वो अपने डेथ के बारे में बता रहा है। बट जब हम देखेंगे कि यीशु ने जो स्टार्टिंग बुक ऑफ द जॉन का जो स्टार्टिंग था, वहाँ से अभी तक का जो जर्नी था चैप्टर 12 तक में, कितना सारा चीज़ें हुआ था यीशु के इसमें। अंधे को रोशनी मिला, एक मतलब मरे हुए में से लोग जी उठे, किसी का पैर जो चल नहीं सकता था वो चलने लग गया, स्पिरिट इविल स्पिरिट को निकाला, यीशु पानी में चला। ये सारी चीज़ें जो यीशु ने की है, ये इसका रीज़न एक ही था, इसका पर्पस एक ही था, जो वो सारी चीज़ों से वो बताना चाह रहा था। और ये मोमेंट था जहाँ पर वो उनको लेके आया था वो सारी चीज़ें करवा के। वो जो सारी जो चीज़ें वहाँ पे साइंस या मिरेकल्स या जो भी चीज़ें परमेश्वर ने जो सिखाई थी, वो यहाँ पर आके एक उनको करना था इस चीज़ के लिए, वो इम्प्लीमेंट यहाँ पर करना था। वो जो यीशु ने किया था वो इसीलिए किया था ताकि उनका जो बिलीफ है वो यीशु पे आए, उनको समझ में आए कि यीशु ही परमेश्वर है। वो यीशु चाहते थे कि वो उन पर ट्रस्ट करे, वो जाने कि वही परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने इतने सारे साइंस किए और इतने सारे मिरेकल्स किए जो भी थे, और इतने सारे टीचिंग दिए, ताकि लोग जो है उन पर बिलीव करने लगे। ताकि जब ये मोमेंट आए ना, तब जब यीशु बोले ना उनको, तब उनके लिए ईजी रहे वो समझने के लिए या वो बिलीव करने के लिए जो यीशु इसके बाद बोलने वाला है। क्योंकि इसके बाद का पीरियड में सीखने का टाइम नहीं रहेगा, इसके बाद का पीरियड रहेगा इम्प्लीमेंटेशन करने का, जो उन्होंने सीखा है। तो यहाँ तक का जो पीरियड था ना चैप्टर 12 तक का, वो सीखने का टाइम था। और इसके बाद जो है ना इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है, जहाँ पर यीशु यहाँ पर आगे वाले वर्सेस में बोल रहा है कि वो आपको एक चॉइस दे रहा है कि मतलब समझो अगर आप जा रहे हो, आपने अभी तक का जर्नी किया है, वहाँ पर आपके पास एक चॉइस है, एक सीढ़ी ऊपर जाता है और एक सीढ़ी नीचे जाता है, आप क्या चूज़ कर रहे हो उसमें। वो चॉइस एक यीशु ने दिया है वहाँ पर। तो वो चॉइस जो है हमको आगे पता चलता है कि मतलब वो ये आर के लिए मतलब यीशु को लगा कि अब मेरा टाइम आ गया है, क्योंकि उसने जो जितने सारी चीज़ें की थी उससे बहुत सारे लोगों का जो फेथ है वो बिल्ड हुआ है। और हम लोग जैसे देखते हैं कि चैप्टर 11 में हम लोग एक चैप्टर पहले देखें कि इतना बड़ा साइन हुआ जहाँ पर मतलब 4 दिन से एक इंसान मरा हुआ है, उसके बॉडी मतलब डिकम्पोज हो गई है, उसमें स्मेल है, उसमें मतलब कीड़े लगे हुए हैं। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में वो यीशु के साथ बैठकर खाना खा रहा है। तो वो इतना बड़ा जो साइन था वो मतलब लोगों के लिए बहुत मतलब बिलीफ सिस्टम या उन पर ये बिलीव करने के लिए कि यीशु ही परमेश्वर है, वो बहुत ज़्यादा था उनके लिए। और हम वो चीज़ अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे मतलब परमेश्वर का टाइम है। और फिर जैसे ही चैप्टर 12 का स्टार्ट हुआ, वहाँ पर वो परमेश्वर और लाजरस और सब वहाँ पर बैठ के खाना खा रहे। और फिर हमने देखा कि मार्था ने मतलब मार्था थी और फिर मैरी जो थी, उन्होंने मतलब वो उसका जो एक्सपेंसिव ऑयल था या वो एक्सपेंसिव जो ये था वो उससे परमेश्वर के पैर धोए। ये सारी चीज़ें हुई चैप्टर 12 में। फिर हमने देखा आगे कि यीशु का जो टेम्पल एंट्री था वो हुआ वहाँ पर, मतलब वो आए वहाँ पर अपना यहाँ पर मतलब यहाँ पर आया अपना क्या बोलते हैं, उन्होंने एंट्री किया वहाँ पर।
और फिर हम देख रहे कि परमेश्वर यहाँ पर मतलब फीस्ट में है और ये लोग आ रहे हैं और उनको बोले, और फिर अचानक से परमेश्वर बोला कि मेरा समय आ गया है। तो ये पीरियड में परमेश्वर आगे उनको बोलता है कि ट्रूली ट्रूली आई से टू यू अनलेस अ ग्रेन ऑफ व्हीट falls into the earth and dies, it remains alone. But if it does, it bears much fruit. ये मोमेंट था जब भी परमेश्वर कुछ चीज़ें बता रहा है कि हमारा जो लाइफ है, अगर हम लोग उसको अगर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक वो फ्रूट नहीं देगा। एक वो ग्रेन का या एक सीड का एग्जाम्पल वहाँ पर ले रहा है परमेश्वर। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है लेकिन बहुत ही डीप है, जो उसका मतलब बहुत ही डीप है जो परमेश्वर बोलना चाह रहा है। एक सीड है, एक सीड को हम लोग ऐसे शोकेस में या हम लोग इसको ऐसे कहीं पर भी नहीं रख सकते, वो मतलब सूख जाएगा या तो फिर मर जाएगा अकेले ही। बट जब हम उसको ज़मीन में गाड़ेंगे और तब जब हम उसको गाड़ के छोड़ देंगे और पानी डाल देंगे तो क्या होगा, उसमें जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा सीड तब तक उसमें से लाइफ नहीं आएगा। यीशु हमको बता रहा है कि हमारा जो लाइफ है वो हमको बोना है, उसको सेक्रीफाइस करना है, तभी उससे लाइफ निकलेगा। और यीशु भी जानते थे कि वो जब तक उनका सेक्रीफाइस नहीं होगा तब तक वो जो एंड ऑफ द वर्ल्ड तक का जो मतलब गॉस्पेल जाना है वो नहीं हो सकता था। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था उनके लिए ये पीरियड में, जहाँ पर उनको अपना सेक्रीफाइस देना था ताकि जो गॉस्पेल है लोगों तक पहुँचे। और यही वो बता रहा आगे। और फिर नेक्स्ट वर्स में, whoever loves his life loses it and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. अभी ये जो वर्स है ये बहुत ही देखने, अगर हम लोग सोचेंगे कि क्या बोल रहा है यीशु यहाँ पर, कि लाइफ जो हमको मिला है क्या हम लोग इसको छोड़ दे, या हम लोग जो जी रहे हैं या वो तरीके से हम लोग जी रहे हैं क्या हम लोग उसको छोड़ दे, बट या जो हम लोग अभी जो कर रहे हैं हम लोग उसको छोड़ दें, हम लोग उसमें त्याग दें क्या? ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब कुछ और है। हम अगर समझो, अगर हमको कोई क्वेश्चन करता है कि क्या मैं यीशु से प्यार करता हूँ, तो मेरा आंसर रहेगा यस, और सभी का रहेगा यस। बट और एक चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। ये क्वेश्चन, अगर हम, ये जो वर्स है ना, ये हमको एक चीज़ बता रहा है। अगर हम लोग स्टार्ट ऑफ द बुक से जाएंगे, अगर ओल्ड टेस्टामेंट के जेनेसिस में जाते हैं एक बार, और हम लोग देखते हैं कि सिन जब आया तब हमारे बीच में, हमारे और परमेश्वर के बीच में ऐसा क्या था जो आया ऐसे, मतलब हमारे और परमेश्वर के बीच में ऐसा क्या एक चीज़ था जो आया, जो एडम और ईव के भी पहले, जब एंजल और जब परमेश्वर के बीच में वो हुआ, तो तब क्या हुआ जब परमेश्वर ने उस एंजल को स्नेक बना के धरती पर फेंक दिया। तो ऐसा क्या चीज़ था जो हमारे और परमेश्वर के बीच में आया, और जो एडम और ईव के टाइम पे भी सेम ही चीज़ हुआ। ऐसा क्या चीज़ था कि आप लोग कोई बता सकते हैं? प्राइड भी है, सिन है। सिन उसके बाद का पार्ट है, उससे पहले ही वो जो हमारे अंदर होता है हमेशा, उसके बाद ही सिन आता है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि हाँ, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मतलब हम लोग सेटन पे डाल देते हैं सब कुछ, कि मेरे को सेटन ने टेम्पटेशन दिया तो मैंने सिन किया। बट यस, एग्जैक्टली, ये जो चीज़ है ना, ये हमारे और परमेश्वर के बीच में बहुत स्टार्ट से है। और यही चीज़ जो है यीशु अभी तक हमको, मतलब यहाँ पर वो सिखा रहा है, बोल रहा है वो चीज़। वो बोल रहा है कि मतलब वो जो टाइम वो एंजल ने सोचा कि अरे मैं परमेश्वर का जगह ले सकता हूँ, वो उसका डिज़ायर था। वो डिज़ायर परमेश्वर को नहीं पसंद आया। जब एडम और ईव के टाइम पे हुआ तब उसको भी डिज़ायर था कि मेरे को सब जानना है, उनको सब जानने के लिए, उनको सब पता हो करके, ये उनका डिज़ायर था। और वो डिज़ायर उनको नीचे लेकर गया। और यही इस वर्स का मतलब है कि जो हमारा डिज़ायर है ना, जो सेल्फ सेंटर्ड डिज़ायर होता है, वो सेल्फ ड्रिवन डिज़ायर नहीं है, वो गॉड ड्रिवन डिज़ायर होना चाहिए। वो परमेश्वर यही बोलना चाह रहे हैं हमको कि जो हमारा डिज़ायर है ना, वो उसको हमको त्यागना है, और परमेश्वर जो चाहता है ना वो हमको करना है,
ताकि जब हम लोग, हमारा लाइफ ऐसा होना चाहिए, हम जो भी लाइफ जी रहे हैं ना, जहाँ पर भी हमारा लाइफ हमारे हाथ में होना चाहिए, कि जब भी हम परमेश्वर बोले ना कि अरे तेरा टाइम आ गया है, तो हमको हमारे हाथ में से वो हमारे लाइफ को दे देना। वो परमेश्वर वो चाह रहा है कि हमको वो करे, मतलब हमारा लाइफ ऐसा हो करके। ये स्क्रिप्चर्स का मतलब वही है। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने, मतलब हम लोग हिमालय पे चले जाए कि अभी मेरे को कुछ भी इच्छा नहीं है, मैं और परमेश्वर सिर्फ आप और मैं ही हूँ। मतलब हम बैठ जाते हैं ऐसे माटी डाल के और हम बोलते परमेश्वर मैं और आप ही हूँ, हमारा सब डिज़ायर हम लोग छोड़ देते हैं। आज के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मेरे को कुछ चाहिए, ना ही मुझे कुछ करना है। बट उसके आगे के वर्स में ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने वो आगे भी लिखा हुआ है कि आगे, उसके आगे इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर का, इफ़ एनीवन सर्व्स मी ही मस्ट फॉलो मी एंड वेयर आई एम देयर विल माई सर्वेंट बी ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने ऑप्शन नहीं दिया है कि दैट अगर मैं क्राइस्ट को फॉलो, मतलब मैं चाहता हूँ कि क्राइस्ट मुझे मतलब मैं और क्राइस्ट का रिलेशनशिप रहे, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं करूँगा, ये ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने क्लियरली बोला है कि जहाँ पर जो मैंने किया है ना, या जहाँ पर मैं अभी हूँ ना, वहाँ पर ही तुमको आना ही है। मतलब मेरा जो सर्वेंट होगा ना, जो मुझे फॉलो करेगा, वो वहाँ पर ज़रूर आएगा वहाँ पर। तो वो जो पाथ यीशु जो चल के आया है, या यीशु जो अभी जहाँ पर है, वो उसका सर्वेंट भी फॉलो करेगा, उसको करना ही है, तब जाके उसको इटर्नल लाइफ मिलेगा। इफ़ एनीवन सर्व्स मी द फादर विल ऑनर मी। तो वो जो है पीरियड, वो जो चीज़ जो आगे बोला है कि अगर हमने सोचा कि अरे मेरे को कुछ डिज़ायर नहीं है, अभी मैं सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर मेरी, मतलब हम दोनों ही रहेंगे, बट वो नहीं है। वो परमेश्वर बोल रहा है कि तुमको जाना है, जो मैंने किया वो तुमको भी करना है। परमेश्वर गॉस्पेल था कि मतलब जो लोगों को, और जो लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में जो है, वो लोगों को परमेश्वर तक पहुंचाने का एक ज़रिया था। वो जो परमेश्वर का क्रोध था, वो अपने ऊपर लेने के लिए परमेश्वर ने अपना लाइफ दे दिया। तो परमेश्वर और लोगों के बीच में जो था, वो यीशु था, वो गॉस्पेल। हमको भी वही करना है कि जो लोग हैं उनको और परमेश्वर को जोड़ने के लिए जो हमको दिया गया गॉस्पेल, हमको वो देना है। तो ये हमारा काम है। वो ये जो वर्स है वो उसको बता रहा है परमेश्वर। हम उसके नेक्स्ट वर्स में देखेंगे कि यहाँ पर मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि नाउ माई सोल इज ट्रबल्ड एंड व्हाट शैल आई से, फादर सेव मी फ्रॉम दिस आवर, बट फॉर दिस पर्पस आई हैव कम टू दिस आवर। यहाँ पर परमेश्वर का हृदय भी रेडी नहीं है। परमेश्वर को भी 1 मिनट के लिए लग रहा है, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है कि आगे क्या आने वाला है, कितने ट्रिबुलेशंस होंगे, कैसा उसका जर्नी होगा आगे वाले दिनों में। वो जानता है कि इसके बाद का जो टाइम है बहुत सफरिंग वाला होगा उसके लिए, बट फिर भी वो परमेश्वर जो है एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है यहाँ पर हमारे लिए, और उस टाइम पे वो जो उसके जो डिसाइपल्स थे उनके लिए, कि वो जानता है कि आगे आने वाला क्या पीरियड है, बट फिर भी वो उनको बोल रहा है कि मतलब तुमको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं है। मतलब वो गॉस्पेल, मतलब अपने लाइफ को जीने का, मतलब अपने विल से नहीं, लेकिन परमेश्वर का विल जो था वो पूरा करने का, इससे और कोई ज़रिया नहीं है करके। तो मतलब परमेश्वर यहाँ पर वो बहुत ही दुख में है, लेकिन वो परमेश्वर ये भी जानता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो पर्पस के लिए जो परमेश्वर ने यीशु को भेजा था, वो पूरा करने का समय यही था, और बिना इसको स्किप करे वो चीज़ें नहीं हो सकती थी। तो वो जो है वो यहाँ पर परमेश्वर सिखा रहा है कि वो जानकर भी इतना मतलब ट्रिबुलेंस या इतना जो ये है, इतना जो वो सताव होगा आने वाले टाइम में, वो जानकर भी परमेश्वर उसके आगे जा रहा है। वो ये सब उसके लिए मैटर नहीं कर रहा है। आगे बोलता है कि बट फादर बाय योर विल, और फिर वो बोलता है फादर ग्लोरीफाई योर नेम। तो ओनली फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड, और कुछ नहीं। वो जो सारी चीज़ें थी, इतने जो लोग थे उसके साथ में जो थे, या उसका जो जुड़ाव था वो लोगों के साथ में, इतने जो लोग उसको प्यार करते थे या वो लोगों को प्यार करता था, और जो भी चीज़ें थी, इतने जो सताव थे, वो एक तरफ हो गया,
और परमेश्वर का जो ग्लोरिफिकेशन वो एक तरफ हो गया। हमारा जो डिज़ायर है और जो परमेश्वर का विल है, हम हमारे लाइफ में जो सताव आता है या हमारे लाइफ में जो टेम्पटेशन आता है समझो, या हमारे लाइफ में जो टेस्ट आता है, वो इसलिए आता है ताकि वो उससे दो चीज़ हो सकता है, जो अगर हम डिज़ायर चुने या लव ऑफ गॉड चुने। अगर हम हमारा डिज़ायर चुन रहे हैं ना, तो परमेश्वर का ग्लोरिफिकेशन नहीं होगा वहाँ पर। बट अगर हम उस डिज़ायर को नहीं चुने और परमेश्वर के प्यार को चुने ना, तो परमेश्वर का ग्लोरिफिकेशन होगा। यही रीज़न है कि हमारा लाइफ भी है जो परमेश्वर को ग्लोरीफाई करने के लिए बनाया है परमेश्वर ने हमको, ताकि जो हमारे लाइफ के थ्रू परमेश्वर को ग्लोरिफिकेशन मिले। और अगर ये सारे मोमेंट्स में अगर हम लोग को जब चॉइस मिलता है और अगर तब भी हम लोग ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग का लाइफ का मीनिंग बहुत ही मतलब ये है कि जब हमको चॉइस भी मिल रहा है कि हम परमेश्वर को ग्लोरीफाई कर सकते हैं वहाँ पर जिस मोमेंट पे, बट हम हमारे डिज़ायर्स को चुनकर परमेश्वर का ग्लोरिफिकेशन हम लोग स्टील कर रहे हैं, हम लोग चुरा रहे हैं परमेश्वर के ग्लोरिफिकेशन। तो वो पीरियड मतलब परमेश्वर यहाँ पर सिखा रहा है यीशु कि इतना भी तकलीफ़ क्यों ना हो, बट फादर का विल जो है वो ही पूरा होगा। ये एक एग्ज़ाम्पल जो एक बार यीशु ने सेट किया है, ये हम सभी के लिए मतलब ये है कि हमको भी जब हमारा अगर परमेश्वर हमको बोल दिया कि हमारा टाइम आ गया है, तब हमको ये सोचना नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्या, इसका क्या होने का होगा, या ये सारे टाइम का क्या होगा, या ये सारे लोगों का क्या होगा, बट जो फादर का विल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सिखाने के लिए ये इतना सारा कुछ चीज़ें हुआ है अभी तक में कि ओनली फॉर द विल ऑफ फादर, ये फादर का विल पूरा करने के लिए ही जो अभी तक जो चल रहा था चीज़ें वो हुआ है, ताकि ये मूवमेंट पर आकर कोई बोल नहीं सके कि मतलब तेरे पास तो कुछ भी नहीं था, या मतलब तेरे पास तो रीज़न ही नहीं है फादर को चुन, मतलब तू ये सब रखने के लिए तेरे पास। नेक्स्ट वर्स में देन अ वॉइस केम फ्रॉम हेवन, आई हैव ग्लोरीफाइड इट एंड आई विल ग्लोरीफाई इट अगेन। यहाँ पर ये जो वॉइस है ये दिस इज़ द थर्ड टाइम जब ऊपर से फादर डायरेक्टली जो है वो बोल रहे हैं, मतलब डायरेक्टली वॉइस में परमेश्वर जो बोल रहे हैं। ये दिस इज़ द थर्ड टाइम जब ऐसा हुआ है। पहले इससे हुआ है मैथ्यू 3:17 में हुआ है, जहाँ पर 3:17 And behold, a voice from heaven said, This is my beloved Son, and whom I am well pleased. 17:5 में भी बोला है सेम। He was still speaking when, behold, a bright cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. फादर का एक ही मकसद था बताने का कि यीशु मेरा मतलब मेरा बेटा है। वो बता रहा था, मतलब वो चाह रहा था कि बताए कि वो भी गॉड है, वो भी वही चाह रहा था। और यही रीज़न था, मतलब यहाँ पर भी परमेश्वर ने उनके सामने मतलब ऊपर से आवाज़ देकर बोला। बट उसके आगे हमने देखा कि यहाँ पर और भी तरीके के लोग हैं जो आगे हैं। द क्राउड दैट स्टूड देयर एंड हर्ड इट सेड दैट इट हैड थंडर्ड, Others said that angel had spoken to him. यहाँ पर हमने देखा कि अभी 3 टाइप के लोग हमको दिख रहे हैं। एक जिसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जिसको लग रहा है कि बिजली कड़की है यहाँ पर, और एक ऐसे लोग हैं जिसको सुनाई तो दिया है बट वो बोल रहे हैं कि मतलब एंजल ने बोला होगा, और कुछ लोग हैं शायद उनको समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर ऊपर से बोल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 टाइप के जो लोग हैं, उसमें से जो हमको पता चल गया अभी तक में कि परमेश्वर ने खुद बोला है उसके आवाज़ से, बट हमको इतना क्लैरिटी मिल गया कि जो ज्यूज़ थे वहाँ पर वो बहुत दूर थे परमेश्वर से, उन लोग का रिलेशनशिप था ही नहीं परमेश्वर के साथ में, क्योंकि उन लोग परमेश्वर की आवाज़ को भी नहीं पहचान पाए और ना ही पहचान पाए यीशु को भी। तो ये बहुत क्लैरिफिकेशन मिलता है हमको कि वो जो ज्यूज़ थे वहाँ पर, उन लोग
का जो रिश्ता था परमेश्वर से वो शायद था ही नहीं। उन लोग सिर्फ अपने घमंड में जी रहे थे। तो ये जो लोग हैं ना इसमें, और ऐसे भी लोग थे जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया, तो ऐसे ये उसी टाइम तक ही नहीं थे, ये अभी भी लोग हैं जो हमको देखने में मिलते हैं हमारे इसमें लाइफ में, जो कि स्क्रिप्चर्स बहुत ही क्लियरली बोलता है बट फिर भी उनको समझ में नहीं आता, या वो देखकर अपने घमंड को ये नहीं करते, अपने घमंड को उन लोग स्क्रिप्चर्स के ऊपर रखते हैं क्योंकि उनको सब आता है। मतलब ये जूस भी वही कर रहे थे, जहाँ पर यीशु उनको क्लियरली सिखा रहा है बहुत सारी चीज़ें, बट फिर भी उन लोग के लिए उनका घमंड या उनका नॉलेज या उनका लॉ जो था उनके लिए वो सबसे ज़्यादा था। उनको लग रहा था कि उन लोग राइचियस थे करके। दैट इज वो जो सेम चीज़ है वो हमने भी देखा है हमारे लाइफ में कि कि लोगों के लिए उनका जो राइचियसनेस है या लोगों के लिए उनका जो नॉलेज है कितना इम्पॉर्टेंट है, कि उनको जो यीशु सिखा रहे हैं उनको उससे मतलब ही नहीं है। यीशु का टीचिंग अलग हो गया और उनका नॉलेज अलग हो गया। ये जो लोग हैं आज भी हमारे लाइफ में जुड़े हुए हैं। ये लोग तभी भी थे और अभी भी है और शायद आगे भी रहेंगे इस टाइप के लोग। बट उसके बाद यीशु उनको बोलता है कि दिस वॉइस हैज़ कम फॉर योर सेक नॉट माइन, नाउ इज़ द जजमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, नाउ विल द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड बी कास्ट आउट। यीशु सेटन के बारे में बोल रहा है कि उसका टाइम अभी ख़त्म होने वाला है और वो बोल रहा है कि उसको अभी निकाल के फेंक देगा, मतलब परमेश्वर वो उसको निकाल देगा यहाँ पर से या उसको ख़त्म कर देगा जो भी है। और वो उनको बोल रहा है कि अभी जजमेंट का टाइम आने वाला है। वो उनको प्रिपेयर कर रहा है आने वाली चीज़ों के लिए, कि उनको वो चॉइस दे रहा है अभी से, उनको वो प्रिपेयर कर रहा है कि जब वो टाइम आए तो तुमको पता चले कि तुमको क्या चूज़ करना है, या जो अभी तक हुआ है, जो अभी तक यीशु ने किया है, क्या वो काफ़ी नहीं है उनको जानने के लिए कि वो ही परमेश्वर है या वो ही मसाया है। आगे के वर्स में when I am lifted up from the earth will draw all people to myself. He said this to show by what kind of death he was going to die. ये बोलने के बाद में मतलब लोग जो उधर थे वो पागल हो जाते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहा है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, जो उन्होंने अभी तक जो उनका अंडरस्टैंडिंग था उसके हिसाब से तो मसाया मतलब फॉरएवर रूल करने वाला है उनके ऊपर। उन्होंने तो उसका स्वागत भी किया था। अगर ये बोल रहे हैं कि मतलब मेरा डेथ होने वाला है, लिफ्ट मेरे को मतलब हैंग कर देंगे ऊपर से, तो फिर हमारा मसाया कौन रहेगा? उनके लिए उन लोग फिज़िकल मसाया का वेट कर रहे थे, बट यहाँ पर जो यीशु था वो स्पिरिचुअली लोगों को हील करने आया और वो उसका पर्पस कुछ और ही था। तो उसके बाद में जब जैसे यीशु ये बोलता है, और यहाँ पर यीशु आगे के वर्स में लिखा है कि परमेश्वर बता रहा है कि कौन से कैसे परमेश्वर का डेथ होने वाला है। ये भी परमेश्वर ने यहाँ पर बता दिया कि वो बता रहा है कि आई विल बी लिफ्टेड अप फ्रॉम द अर्थ एंड विल ड्रॉ ऑल पीपल टू माई सेल्फ। द मोमेंट परमेश्वर का डेथ हो रहा होगा या मतलब डेथ हुआ होगा, तब पर जो सारे लोगों का जो लोग हैं वो परमेश्वर को जानेंगे। वो ही एक रीज़न था मतलब एंड्स ऑफ द वर्ल्ड में पहुंचने का परमेश्वर के लिए। उसके बाद लोग वहाँ पर जो है उन लोग का ये आता है। सो द क्राउड आंसर्ड हिम, वी हैव हर्ड फ्रॉम द लॉ that the Christ remains forever. How can you say that the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man? ये जो क्वेश्चन है who is this Son of Man, अभी तक उनको नहीं समझ में आया है। मतलब ऐसे लोग जो थे उधर अभी भी है, इधर हमको दिखते हैं अभी हमारे इसमें, कि उनको नहीं समझ में आता कि कौन है परमेश्वर, यीशु कौन है करके। उनको दिख गया है कि इतने सारे चीज़ें यीशु ने किए हैं। वो उस समय मेरे को भी बहुत ये था कि मतलब कैसे मतलब लोगों के सामने दिख रहा होगा, लोगों के सामने मतलब परमेश्वर खड़ा है, जीता जागता खड़ा है उनके साथ में, और फिर भी उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये यीशु मतलब परमेश्वर है। इतना मतलब अंधकार था वहाँ पर उनके लाइफ में, या इतना उनको अपने इसमें उनको घमंड था उनके टीचिंग्स पे या नॉलेज पे, कि उनको नहीं समझ में आ रहा था अभी तक में। उसके बाद यीशु ऐसे लोग जो है ना उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं, उसके आगे जो वो बोल रहे हैं ना
वो उनके लिए मतलब सीधा सीधा उनके लिए एक ये है बोल दिया परमेश्वर ने कि यही है तुम्हारे लिए। वो उनको एंटरटेन नहीं करते हैं। जहाँ पर उन लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं यीशु को, वो एंटरटेन नहीं कर रहे, वो उनको एक ही चीज़ बोल रहे हैं, द लाइट इज़ अमॉन्ग यू फॉर अ लिटिल वाइल लॉन्गर, वॉक वाइल यू हैव द लाइट, लेस डार्कनेस ओवरटेक यू। द वन हु वॉक्स इन द डार्कनेस डज नॉट नो वेयर ही इज़ गोइंग, वाइल यू हैव द लाइट बिलीव इन द लाइट दैट यू मे बिकम सन्स ऑफ लाइट। ख़त्म, बस। इसके लिए ऐसे जो लोग हैं ना, उनको परमेश्वर ने एक ही चीज़ बोल दिया है कि अभी जो है लाइट है तुम्हारे साथ में, जब तक है ना तब तक तुम लोग मतलब सुधर जाओ और लाइट में आ जाओ, इससे पहले कि डार्कनेस ओवरटेक्स यू। वो टाइम था उनके लिए जब तक यीशु था, हमारे लिए है जब तक मतलब यीशु दोबारा नहीं आए, मतलब या तो जब तक वो सेटन ओवरटेक नहीं करे इस वर्ल्ड को, जब तक हमारा रैप्चर नहीं हो, तो हम मतलब वो टाइम तक हम जो है वो लाइट में आ जाए। वो एक लोगों के लिए एक मतलब ये था कि यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि आपको किसके साथ चलना है। कि अगर वो स्टेयर्स अगर मैं देख रहा हूँ कि अरे अभी यीशु का जो लाइफ था बहुत ही डिफ़िकल्ट है और वो जा रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे जाने के लिए बहुत आसान है। अगर हम लोग स्टेयर्स जो यूज़ करता है उसको पता है कि समझो ऊपर जाने का जो है वो हमको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, हमारा सांस फूलता है, हमारा पैर दुखता है, बट नीचे जाना बहुत इजी है। तो हमारे लाइफ में भी ऐसे ही है कि नीचे जाने के लिए ना बहुत इजी हो जाएगा, बट जब हम नीचे पहुंच जाएंगे ना और जब हमको पता चलेगा अरे ये मैं कहाँ पर आ गया, मतलब और मुझे तो जाना था ऊपर और मेरा तो घर जो है वो ऊपर है, तो जो रास्ता होगा ना चढ़ने के लिए फिर से वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। वो जो वे होगा ना, वो जो आप जहाँ से आप जा सकते थे ना, उसके बाद अब नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर चढ़ना ना, वो डबल आपके लिए मतलब ये रह जाएगा हमारे लिए। तो यही एक वार्निंग था इस मतलब चीज़ों में, और यही इसके बाद का जो चीज़ें हैं वो फिर भी हम देखते आगे के वर्सेस में कि मतलब लोगों को फिर भी नहीं समझ में आता इतने सारे बोलने के बाद में, फिर भी अनबिलीफ जो है रहता ही है वहाँ पर। बट जो सच में यीशु को जानता होगा, या जो सच में यीशु को जानना चाहता है, जैसे वो जेंटाइल्स आए थे वहाँ पर यीशु को जानने के लिए, वो क्यूरियोसिटी लेके आए थे, वो शायद अगर वो हमारे पास रहे तो हम लोग को भी समझ में आएगा। और या जो भी मतलब आने वाला होगा या जो भी जानना चाहता है यीशु को और सच में वो यीशु को फॉलो करना चाहता है, ना कि वो सारी चीज़ों को जो लोग यहाँ पर दिखाते हैं हमको। ये स्क्रिप्चर्स में क्लियरली कहीं पर भी नहीं है कि मतलब हमको बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ दिख रहा है यहाँ पर, या हमको मिलने वाला है बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखा हुआ है। क्योंकि यीशु जब भी जो समय में जी रहे थे यहाँ पर, जो हमने देखा एक मैथ्यू में वो बोलते हैं कि मतलब यहाँ पर तक तो मतलब चिड़िया और वो जो जानवर है उनके पास भी घर है लेकिन मेरे पास नहीं है। तो यीशु के पास तो घर भी नहीं था। तो यीशु जो लाइफ जी के आया है वो हमको भी जीना है। तो हमको नहीं पता कि हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, बट जैसा लेकिन हमको वह उस तरीके से जाना है जैसे यीशु गया। हमको नहीं पता, और ना ही यहाँ पर कहीं पर प्रॉस्पेरिटी या कुछ ऐसे चीज़ लिखा हुआ है कि तुमको यीशु में आने के बाद में ये सब मिलने वाला है, कहीं पर भी नहीं है। यीशु का लाइफ जो था बहुत ही सिंपल था और बहुत ही मतलब बहुत ही सैक्रिफिशियल लाइफ था उनका, और बहुत ही मतलब ऐसा लाइफ था जो सिर्फ देने के लिए उन्होंने किया था। वो लाइफ परमेश्वर बोले कि हमको जीना, और हमारे जो डिज़ायर्स है उसको छोड़ के जो परमेश्वर का विल है वो होना चाहिए हमारे लाइफ में। ये था वो अभी तक का मतलब यहाँ पर काम है। सो आई जस्ट क्लोज।